let us start with the revision of chapter number 1, History of Commerce in India, or Evolution and Fundamentals of Business. Now, when we start with this chapter, you need to first of all understand what does the chapter's name suggest. The name है वो क्या बता रहा है? The name suggests that this is all about the how business came into, मतलब एक business जो है कैसे आया था, and what are the fundamental principles. What is the meaning of fundamental? Is basis for everything. मतलब कोई भी बिजनेस करोगे तो ये आपका बेस होगा, लेकिन उसमें कितना उतार या कितना चढ़ाव होगा, that depends upon the nature of the business. So in the very first, from the history part, we would be having that इंडिया के अंदर बिजनेस वॉज नेवर अ न्यू टर्म. अगर हम आज कहते हैं स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस है, तो नो, बिजनेस इज नॉट अ न्यू टर्म इन इंडिया. स्पेसिफिकली इंडिया हैज ऑलवेज बीन कॉल्ड सोन चिड़िया. मतलब इट वॉज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ गोल्डन बर्ड, एंड वी हैड इनफ रिसोर्सेस. एंड उस टाइम में भी, आई एम टॉकिंग अबाउट 12th 13th 14th सेंचुरी, जब आपके प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं हमने पढ़ा है, देन ऑल्सो देयर वर इंटरैक्शंस, देयर वर ट्रेड. इनफैक्ट जिसको आज हम बोलते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, वो भी उन दिनों में हुआ करता था. The only thing is, उन दिनों में जो हमारे imports होते थे, they were not called as import, they were not called as exports. जैसे जैसे आपके जो मर्चेंट्स होते थे, वो लोग जाते थे, वो लेकर आते थे, यहाँ बेचते थे. यहाँ पे कोई आता था, वो खरीदता था, वो वहां लेकर जाता था. So we did not call it as exactly, क्योंकि import और export होता है एक system. A system in which you are getting those things on a required quantity. हमें कितना चाहिए और हम एक सिस्टम से मंगवाते हैं. Now let us come to the history part. In most of the schools, this particular system is taken, मतलब ये वाला जो portion है, इसको सिर्फ 1 marker questions या मैच में ही दिया है अभी तक. तो if we talk at that period, when the trading system was there, तो उन दिनों में क्या होता था, लोग जो है अपना जो सरप्लस होता है, whatever they had the surplus, they would go and sell out in the local markets. slowly ये local markets जो है, आपके पड़ोस के गांव के हाट, पड़ोस के गांव में कोई मेला, this started. And then started the people who used to come and buy. Now at that point, first we had the intermediaries. Now what are intermediaries in the modern business? Modern business में intermediaries कौन है पता आपको? The wholesaler, the retailers, उनको हम इंटरमीडियरीज बोलते हैं इन द मॉडर्न बिजनेस टर्म. लेकिन पहले इनको हम लोग ऐसे होलसेलर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसा नहीं होता था. उस वक्त में क्या होता था, व्हेन द पीपल हैड द सरप्लस, दे वुड सेल आउट. देन देयर वर सम पीपल जिन्होंने मिडिल मैन का काम करना शुरू किया. शहर से दे वुड ब्रिंग द डिमांड and they would give the advance to the people, the weavers, the craftsmen, the businessman, and then jitna saman banaya tha usko wo log on a commission they would sell out in the. आज के डे में हम इनको होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स का नाम देते हैं. and thus the intermediaries were also there who would be taking. In fact, they would even help the business, the tradesman, craftsman, in some artisans, इनको पैसा भी देते थे. Now, in the very initial, we did not have a proper what we call as currency system. हम लोगों ने 10th standard में पढ़ा था that earlier we used to have what we call as the barter system.
Then barter system changed to the cattle. Then जहां जहां जैसे जैसे राजा लोग रहते थे, they would be taking up the उनके अपने जो coins होते थे उनको लिया, and then required कि कोई एक ऐसा आदमी, कोई एक ऐसी community हो जो help करे when the people needed money, when the people needed safety. और हमारा अपना, दैट इज व्हाई इट इज रिटन क्लास 11 इंडिजीनियस. इंडिजीनियस मतलब विच इज रूटेड टू आवर ओन कंट्री. इंडिजीनियस का मतलब होता है जो हमारी अपनी, मतलब दिस वाज नॉट इंपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री. वी हैड आवर ओन बैंकिंग सिस्टम्स. अब ये जो बैंक है ना, ये वैसे नहीं होते थे जैसे आजकल आप देखते हो, ओके एसबीआई, एचडीएफसी, और नो नो नो, नॉट लाइक दैट. दिस सिस्टम वॉज जहां लोग मिलकर, या एक इंसान होगा या 4-5 लोग मिलकर, दे वुड बी टेकिंग अप अ प्लेस. वहां पर दे वुड बी गिविंग दी व्हाट वी कॉल एज, पहले तो पॉन मर्चेंट जैसे नाम दिया जाता था. दे वुड बी गिविंग द मनी ऑन द, मतलब कि कोई भी चीज को गिरवी रखा, उनको उसकी जगह सामान दिया. सामान को जो है घर के अंदर रखना मुश्किल होता था, तो दे वुड बी कीपिंग अप, दे वुड बी गिविंग सम इंटरेस्ट. और इस तरीके से हमारा बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ. यू नो, इन इंडिया दिस काइंड ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज स्टिल देयर. हम लोगों को नहीं पता लगता बिकॉज वी आर लिविंग इन द अर्बन एरियाज, बट far off still these kinds of systems are there. क्या है, अब इस सिस्टम को हमने दबा दिया है because we are having a proper government regulated systems. बट पहले भी ऐसे सिस्टम्स होते थे जिनमें लोग जो है एक दूसरे की मदद करते थे. they would be charging the interest, बट सामान रखना है, गिरवी रखना है, या फिर सेफली रखना है. मेरी नानी का जो घर था, मतलब हमारी नानी का घर जो था, बिल्कुल नानी का घर, और उसका जो बाहर का जो एक, मतलब जहां पे दुकान थी, बिकॉज इट वाज ऑन अ वेरी मेन रोड, तो दैट वाज अ पॉन मर्चेंट. एंड उसका यही काम होता था कि जो भी आसपास में लोग, मतलब जो लोग हैं, दे वुड बी कीपिंग देयर थिंग्स. सामान रखा, गोल्ड है, सिल्वर है, तो उसके लिए ही वुड बी गिविंग सम अमाउंट. और कोई सामान रखकर पैसा लेता था, तो उसके लिए ही वुड बी चार्जिंग सम इंटरेस्ट. दिस वाज अ सिस्टम व्हिच इवन डिड. आज हम इसको इनफॉर्मल सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं. देन ट्रांसपोर्ट. Not that ki transport was like we were having the flights, or we were having the boats, or we were having the ships or trains. No. ट्रांसपोर्ट हमारा धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था. लेकिन अगर आप बनारस, विच वॉज वेरी फेमस फॉर सिल्क, एंड तक्षशिला विच इज देयर इन पाकिस्तान, देन आपका चाइना से आपके जो अफगानिस्तान की तरफ जाता है, जिसको हम बोलते हैं सिल्क रूट. केरला के पास आपका था गोल्ड कोस्ट, क्योंकि वहां से आपकी जो काली मिर्च है, दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ द पेपर. काली मिर्च को जो है गोल्ड बोला जाता था. इट वॉज कॉल्ड एज गोल्ड बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली. अभी भी काली मिर्च बहुत कॉस्टली होती है. सो दैट वॉज ट्रांसपोर्टेड. जो आपके पोर्ट एरियाज होते थे, अभी तो हमारे पोर्ट्स काफी चेंज हुए. उन दिनों में आपका विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, दैट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. देन आपके कोच्चि जो आपका केरला आ जाता वहां पर. देन आपका ब्रूच, दैट इज गुजरात. देन आपके कर्नाटका. इन सब एरियाज के अंदर आपके पोर्ट्स होते थे. एंड यहां से आपके आसपास के जो भी देश होते हैं वहां तक आपके जो है, दे यूज टू बी ट्रांसपोर्टेड. And within the country also, like Kanjipuram was very famous for its saris. Then आपका कश्मीर में श्रीनगर, that was famous for its silk. And गुजरात वाला जो एरिया है सूरत, that was very Bhuj, Surat, these were very famous for cotton.
मछलीपट्टनम, ये वाला जो एरिया था, दैट वाज वेरी फेमस फॉर योर पर्ल्स, इंडिया से पर्ल्स, स्पाइसेस, देन सम सॉर्ट ऑफ परफ्यूम, सम सॉर्ट ऑफ, ये सारी चीजें जो है दूसरे देशों में जाती थी। दूसरे देशों से भी कुछ अलग तरीके के पर्ल्स, घोड़े, देन अलग तरीके के जो सामान है, दे यूज टू कम. So we used to have the transport system was which was not well developed like what we have today, but it was developed. But business was not done by everyone. आपको पता है हमारे इंडिया के अंदर we have always divided the society into four. तो देयर वर सम पीपल जिनको हम बिजनेस कम्युनिटीज के अंदर लेकर आते थे, मतलब इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात छत ऐसे करके. देन इन दी सिंध, आपके सिंधीज जो है, इवन टुडे दे आर वेरी गुड बिजनेसमैन. गुजरातीज आर वेरी गुड बिजनेसमैन. ऐसा बोला जाता है कि गुजरात का अगर कोई एक गिलास पानी भी पी लेगा ना तो उसे बिजनेस करना आ जाएगा. एंड यू कैन सी रिलायंस के जो एंड, मतलब कि ओनर से लेकर अदानी, दे आर ऑल गुजराती. सो दे, यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज आपके, देयर वर सम कम्युनिटीज, महाजन से हो जाते, वो आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर आते थे. महाजन द वन हु यूज्ड टू गिव द मनी, एंड कम्युनिटीज आपकी बन गई. एंड इट वाज आइडेंटिफाइड कि अगर ये इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो दे आर इनटू द बिजनेसमैन. यानी कि उन दिनों में भी आपका एक बिजनेस का एक अलग सा, दे यूज्ड टू बी अ प्रॉपर सिस्टम, देयर यूज्ड टू बी अ प्रॉपर कम्युनिटी, देयर यूज्ड टू बी सम इंटरमीडियरीज. And as I have already told you that there were major trading center. Takshila आपका, which was also said to be one of the best universities. इंडिया के जो 2 universities हैं, नालंदा एंड तक्षशिला, आपका अब तो दैट इज इन द पाकिस्तान रेंज पहले, लेकिन इट वाज इन द इंडियन रेंज ओनली. देन आपका इंद्रप्रस्था, विच इज द प्रेजेंट डे दिल्ली, मथुरा आपका, भरूच आपका, सूरत आपका, देन कांजीपुरम आपका, ट्रेवनकोर आपका, मछलीपट्टनम, बनारस. They were all the major trading centers from where one or the other items were either sent or received. Thus, we can say that business is not a new term to India. ये आपका जो था बेटा, that is history of commerce in India. Now, let us come to the main portion, which is normally assessed in all the schools. पहला है, हम जितनी एक्टिविटीज करते हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, यू आर स्टडिंग, आई एम टीचिंग, some of you might be sleeping, some of you might be munching, right? Everything is an activity. in second class हम लोग बोलते हैं action verbs, but in activities को हम divide करते हैं on the basis of how they प्रोड्यूस. तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं विच आर डन फॉर अ पर्पस, विच आर डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, विच आर डन इन द एम ऑफ अर्निंग मनी, विच इज डन वेयर समथिंग इज गिवन एंड एक्सचेंज में हमें कुछ मिलता है, इन सभी को, and which is also adding to the GDP of our country, is called as economic activities. Whereas कोई भी एक activity which we do only for self satisfaction, which we do out of love, sympathy, responsibility, that's non-economic activities. आपके पेपर में when you had done this particular question, so मैंने आपको बताया था, जैसे आपसे लिखा हुआ है कि एक priest है, वो he is performing some puja, but if he is earning through that puja, that becomes economic activity. लेकिन वो सिर्फ अपने लिए कर रहा है तो वो non economic activities हो जाती.
It can be divided into religious, social, patriotic और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम डिवाइड करते हैं इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. नाउ what are the differences between business, employment and profession? सबसे पहले आते हैं बिजनेस पर. बिजनेस जो आपका, या तो बिजनेस में क्या होगा, या तो आप कोई सर्विस दोगे और उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस. वेरस आप कोई सामान खरीद कर बेचोगे, या आपकी अपनी फैक्ट्री होगी जिसमें आप सामान बनाओगे भी, फिर उसको आप मार्केट में बेचोगे. All these you will do where you are getting something in exchange, and the main motive या फिर आपका जो रिवॉर्ड है वो होता है प्रॉफिट. बट बिजनेस का एक दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, विच इज अनसर्टेनिटी इन रिटर्न्स. आप एक दिन का सेकेंड डे से कंपेयर नहीं कर सकते हो. एक दिन बहुत भीड़ हो सकती है, अगले दिन देयर माइट नॉट बी एनी इवन अ सिंगल पर्सन. एक क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में देयर माइट बी डिफरेंस. एक साल में और दूसरे साल में डिफरेंस हो सकता है. एंड नेक्स्ट इज रिस्क. बिकॉज रिस्क है इसीलिए अनसर्टेनिटी भी है. The risk can be of different types, which we would be revising soon. अभी जैसे कल का एक मतलब कि एग्जाम्पल ले लो. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ यस्टरडे. हाउ मेनी बिजनेस वर यू कल जो है प्रॉफिट में रहा होगा. इवन द ईटरीज और द जो आपके डिलीवरी पार्टनर्स थे, दे हैड आल्सो क्लोज्ड. Many of the places yesterday were sinking. Many of them were drowning. There were so many memes on Insta कि आपका जो मतलब there one I saw जिसके अंदर उन्होंने बहुत सुंदर से गुड़गांव को जो है वो किया हुआ था कि दिस इज द लेक ऑफ ये करके. तो कितने बिजनेस कल चढ़े होंगे बताओ. दैट इज रिस्क, नेचुरल रिस्क. कितने बिजनेस में कल पानी आ गया होगा, कितनी चीजें कल रॉट हो गई होंगी. दैट इज रिस्क. तो रिस्क बिजनेस में रहता है. नाउ हाउ मच इट इज, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड हाउ मच स्केल ऑफ बिजनेस यू हैव. स्केल मतलब छोटा है या बड़ा. सेकेंड इज प्रोफेशन, और ये आपके पेपर के अंदर क्लास 11 दिस कैन कम एज डिफरेंशिएट मेकिंग, और आपको जो है बेसिस दे दिए जाएंगे और आपको उसके बेसिस पर मतलब कि इसको करना है. इन द प्रोफेशन मतलब वेयर यू आर प्रोवाइडिंग योर एक्सपर्ट सर्विस. डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, these all come under the professional services. To enter into a professional service you need to have a body of knowledge, यानी कि आपको उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी पड़ती है. एंड उस पढ़ाई को करने के लिए देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस. नॉट एवरीवन कैन बिकम अ लॉयर, नॉट एवरीवन कैन बिकम अ डॉक्टर, नॉट एवरीवन कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. So you need to pass that exam, you need to go through that exam and then only. इन द बिजनेस जब आप कैपिटल लगाते हो वो होता है आपका, डिफाइन करता है लो या हाई. बट इन प्रोफेशन अगर आप अपना चैम्बर खोल रहे हो, अपनी क्लिनिक खोल रहे हो, तो उतना जो कैपिटल आपका लगेगा. इट डजंट रिक्वायर मोर. आपको डे टू डे के लिए कोई नहीं जरूरत पड़ती है. when you are a professional, आप लॉयर हो, तो you need to get yourself registered with bar council of India. डॉक्टर हो, मेडिकल और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया. चार्टर्ड अकाउंटेंट हो,
ICAI यानी कि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, whereas in business you don't need to. कोड ऑफ कंडक्ट इन बिजनेस डिपेंड्स आप कितना अपना रिस्ट्रिक्शन रख रहे हो, बट देयर इज नो प्रिस्क्राइब. लेकिन प्रोफेशन में ऑलरेडी आपका कंपनी लॉ, आपका लॉ मतलब कि जो आपका बार कोड, देन आपके मेडिकल, देर आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट विच यू कैन नॉट क्रॉस. चाहे वो सीए हो या डॉक्टर हो, उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो सकता है. द मेन एम ऑफ प्रोफेशन इज एक्सपर्टीज सर्विस. लेकिन सर्विस का मतलब है आपको सर्विस भी देना है. मींस यू नीड टू कोऑपरेट, you need to give your service to the your client जो satisfied हो. एंड जो पैसा हमें प्रोफेशन से मिलता उसे हम रिवॉर्ड, उसको हम फीस बोलते. इन एन एम्प्लॉयमेंट, जब आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, दैट इज अ कंट्रैक्चुअल रिलेशन. The money you get paid for is salary which is fixed. Whatever आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जो चीज देगा, that would be your what we call as reward. आपका काम, sorry, your work. And normally you don't need any capital investment. एंड फॉर द कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे बिजनेस के अंदर वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब, वो बिजनेस टू बिजनेस डिफाइन करता है. लेकिन एम्प्लॉयर जिस कंपनी में आप कर रहे हो उनके जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होंगे वो आपको लेना पड़ेगा. लाइक इन सम कंपनीज इट इज मैंडेटरी दैट यू हैव टू वियर द यूनिफॉर्म. यू कैन नॉट यूज योर मोबाइल एट दैट टाइम. आपको अलग से कंपनी का मोबाइल मिलता है. देयर आर सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट. And the qualification for a professional you have to उससे रिलेटेड है. और काम जब कर रहे हो तो आपको जो भी आपकी कंपनी का, आपकी जो नौकरी है उससे रिलेटेड है, वही आपका क्वालिफिकेशन है. तो दिस इज हाउ वी डिफाइन. तो अभी हमारा जो बेसिक है, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट बिजनेस because हमारा 11th and 12th is about business. So what are the objectives that we define in a business को क्यों करते हैं? The one and the only one we can say is economic, earning profit. But profit जो है, it is also said as the reward for what you are doing. तो प्रॉफिट, इकोनॉमिक का मतलब है आपको इतना पैसा मिलना चाहिए कि आपकी जो कंपनी है वो सरवाइव करती है इन द लॉन्ग रन. You are able to take something to your home and you are able to grow up your business. आप अपने बिजनेस को, भाई कोई भी बिजनेस अगर 10 साल में सेम चीज कर रहा तो वो बिजनेस नहीं. बिजनेस ऑलवेज नीड्स टू ग्रो. आप किसी भी कंपनी का एक पोर्टफोलियो निकालिए, उन्होंने शायद एक सिंपल प्रोडक्ट से स्टार्ट किया होगा, बट टुडे दे माइट बी हैविंग 2, 3, 10, 20, 30, एंड दैट्स ग्रोथ. An economic objective of a business is to grow, to survive and to have the profit. मतलब लॉन्ग रन में कॉम्पिटिटर के सामने खड़ा भी रहना है, ग्रो भी करना है और अपने लिए अपने पैसों को बढ़ाना भी है. सेकेंड इज सोशल, यानी सोसाइटी के लिए कुछ देना, एनवायरमेंट की देखभाल करना, रोड्स बिछाने, टाइम टू टाइम कोई भी देयर इज एनी ट्रेजेडी, एनी नेचुरल, मतलब कि कोई नेचुरल डिस्ट्रक्शन है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करना. एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड इन माय सेशन टुडे, CSR is compulsory, corporate social responsibility. But
On the other hand, the business can also itself also initiate गर्ल्स चाइल्ड की पढ़ाई, डेस्टिट्यूट के लिए कोई आश्रम, हॉस्पिटल्स बनवाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनवाना. दीज आर ऑल द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है. सो इफ द बिजनेस सोशली दे आर कमिंग, तो उससे सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है. प्लस आपको जॉब्स प्रोवाइड करने, दैट इज ऑल्सो अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. थर्ड इज ह्यूमन और पर्सनल, यानी कि आपकी कंपनी से जो भी जुड़ गया है, दोज हु आर वर्किंग विद योर कंपनी, दे ऑल शुड गेट गुड सैलरी, दे ऑल शुड गेट गुड एनवायरमेंट. अभी जहां काम करते हैं वहां पर अच्छा काम करने का एक एनवायरमेंट होना चाहिए. अदरवाइज व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी एम्प्लॉइज टर्नओवर, यानी कि नौकरी छोड़कर लोग चले जाएंगे. यू नीड टू सी, अब आपकी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो नेचुरल है कि हम सब इंसान हैं. तो वी कैन नॉट बी, जैसे आज फॉर एग्जाम्पल, लेट मी कम टू टूडेज वन, लेट मी कम टू टूडेज वन. Today, yesterday, it was raining like cats and dogs. Now there were so many problems. सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो आई कि भाई कल लोग कैसे आएंगे. Many of the companies gave their employees the system of work from home. That's a personal object, यानी कि उनकी छोटी छोटी चीजों पर, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर भी ध्यान दें. These are the objectives. Again, they may come in the identification. Now, what are the, how do we classify all the business activities? As I said, सामान बनाना, सामान को खरीद कर बेचना या सर्विस प्रोवाइड करना, all are business. और इनको हम जो है on a longer, on the broader term, हम इनको डिवाइड करते हैं इनटू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री वो जहां है जहां सामान बनता है, जहां यू आर प्रोक्यूरिंग. एंड इंडस्ट्री के अंदर हम सबसे पहला लेकर आते हैं प्राइमरी. प्राइमरी इंडस्ट्री हमारा होता है जहां ईदर, आपके पेपर में ये सब क्लासिफिकेशन आ सकता है. एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि एनीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, आप नेचर से उसको उठा रहे हो, निकाल रहे हो. लाइक माइनिंग, ओर्स आपको नेचर में दिखाई देते हैं तो आप उसको निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो. आपको गैस या ऑयल कहीं पे यू कम टू नो, यू एक्सट्रैक्ट दैट. फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब आपके फार्मिंग जहां आपका प्राइमरी. एंड जेनेटिक होता है जहां आप बायोलॉजिकल जीन्स को जो है यू आर गेटिंग फ्रॉम, लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, एग आपका निकालते हैं, दे आर ऑल जेनेटिक. फिशरीज, जेनेटिक मतलब वेयर द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज इन्वॉल्व. But because it is involved from the nature, it is involved with the nature, that is why we call it as primary. Secondary, जहां हमने प्राइमरी से जो एक्सप्लॉइट किया है, एक्सप्लॉइटेशन क्या मतलब, जो हमने सामान वहां से निकाला है उसको हम किसी और चीज में तब्दील करते, we transform it into something else. फॉर एग्जाम्पल, वेन वी गेट द सॉइल, हम उसको ब्रिक बना रहे हैं. फिश से हम उसका जो है वी आर मेकिंग द ऑयल, वी आर मेकिंग द कैप्सूल्स, वी आर गेटिंग द कॉटन बॉल्स फ्रॉम द नेचर, वी आर टर्निंग इट इनटू कॉटन फैब्रिक. दे आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग. एंड
कंस्ट्रक्शन आपका आता, और मैन्युफैक्चरिंग को भी हम लोग अलग अलग इंडस्ट्रीज बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जहां आप एनल मतलब कि आप अलग करते हो, यू आर सेपरेटिंग, एनालिटिक. जहां आप दो तीन चीजों को मिला के कुछ नया बनाते हो, लाइक सीमेंट, दैट इज आपका सिंथेटिक. जहां आपका आईटी है, आईटी इंडस्ट्री, असेंबली, असेंबलिंग इंडस्ट्रीज. यानी कि हम इंडस्ट्री में भी अलग अलग है. हम एक चीज से दूसरी चीज को अलग कर सकते हैं. हम एक चीज से दूसरी चीज को मिला के एक नई चीज बना सकते हैं. और अलग अलग चीजें हमारे पास दी हुई है, एंड वी आर असेंबलिंग इट. देन द कंस्ट्रक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्री, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन को भी हम सेकेंडरी इंडस्ट्री बोलते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग डिफरेंट मटीरियल्स टू बिल्ड समथिंग एल्स. द थर्ड वन इज टेरिशरी. हम टेरिशरी को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं, बिकॉज टेरिशरी इज नॉट एन इंडस्ट्री बट इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री. इट प्रोवाइड सर्विस. It provides the service of transport, banking, insurance, advertisement, warehousing. सेकेंड जो बिजनेस के अंदर आता है वो है कॉमर्स. कॉमर्स हमारा आता है ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. मतलब कॉमर्स जो है वो दो चीजों से मिला है. एक है ट्रेड. ट्रेड मतलब सामान लेकर बेचना, और उसको जो सपोर्ट करता है, उन सामान को लेकर बेचने के लिए जो चीजें सपोर्ट करती हैं, वो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. कॉमर्स आपका बड़ा होता है. नाउ इनसाइड कॉमर्स वी हैव ट्रेड. ट्रेड आपका हो सकता है आप विद इन कंट्री डोमेस्टिक मार्केट में करते हो, या हो सकता है कि आप आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट करते हो. तो व्हेन यू आर डूइंग एनी ट्रेड, यानी कि सामान आपने जो है आपके, यू आर हैविंग द बिजनेस ऑफ होलसेल. आप फार्मर से आप सामान खरीदते हो, एंड देन आपके नीचे आपके एरिया में जो भी रिटेलर्स हैं आप उनको बेचते हो, या आप उन रिटेलर्स में से हो जो होलसेलर से सामान खरीदकर कंज्यूमर को बेचता है. अभी हमने ऊपर इंटरमीडियरीज पढ़ा था ना. होलसेलर होता है जो थोक भाव में सामान खरीदता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स, फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, फ्रॉम द फार्मर्स. एंड देन जो छोटे 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 रिटेलर्स होते हैं जो अपने घर के आसपास होते हैं, उनको बेचता है, एंड देन इट रीचेस द कंज्यूमर्स. वेरएज रिटेलर्स हमारे वो हैं जो लेस क्वांटिटी में, अकॉर्डिंग, होलसेलर में बी डीलिंग इट विद वन और टू प्रोडक्ट, लेकिन रिटेलर के पास तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, तरह तरह की कंपनीज होती हैं. तो दैट इज आपका इंटरनल. इसमें क्या होता है, जो भी आपका बिजनेस है डोमेस्टिक मार्केट में, यानी कि विद इन द कंट्री होता है. Whereas if you are onto the external trade, यानी दूसरे देशों के साथ आपका बिजनेस है, वहां से खरीद कर यहां बेचते हो, इंपोर्ट. एंड इंपोर्ट का जरूरी नहीं आप यहां बेचो, हो भी सकता है कि आप इंपोर्ट करके यू मे बी प्रोड्यूसिंग. एक्सपोर्ट, आप सामान बनाते हो और दूसरे देशों में पहुंचता है, बेचते हो. एंड ऑन्ट्रापॉट, यानी कि एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में बेचना, अपनी कंट्री में नहीं. अपनी कंट्री में बेचोगे तो इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप दूसरी कंट्री में बेचोगे तो वो एंट्रापॉट हो जाएगा. मेनी ऑफ द बिजनेसमैन करते हैं, क्योंकि देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, सो दे टेक द, जो लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, दे अंडरस्टैंड. Now, as I said, tertiary is also called as a service industry. हम tertiary को जो है service industry भी बोलते हैं. And service industry मतलब it is providing the services to the people, and वो services हमारे होते हैं which are also called as auxiliaries to trade, क्योंकि वो trading में भी help करते हैं, and they are
ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस. मतलब एक जगह से दूसरी जगह का जो आपका सामान है, ये पेपर में आपके ऐसे ही आता है. दिस में ऑल्सो कम एज अ मैच द कॉलम. इट रिमूव्स द ट्रांसपोर्ट हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान कैसे जाएगा. बैंकिंग रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ फाइनेंस. आपको सपोज पैसा चाहिए, पैसा आपको सेफ रखना है, आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है. अभी हम लोगों ने 4th चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था बैंक हमें कई सर्विसेज देता है. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट. इंश्योरेंस, any kind of risk. It eliminates the hindrance of risk due to any mishap. If there is any kind of loss in the business, इंश्योरेंस के थ्रू हम उसको थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं. वेयर हाउसिंग या स्टोरेज जो है, दैट रिमूव्स द हिंड्रेंसेस ऑफ टाइम. यानी कि अगर आपका सामान कहीं दूर है और आपके पास सामान खत्म हो गया है, तो कंज्यूमर को आप इमीडिएटली सामान नहीं दे पाओगे. एंड इफ यू आर हैविंग द वेयर हाउस या आपका किसी वेयर हाउस स्टोरेज के साथ इफ यू आर हैविंग एसोसिएशन, वहां आप सामान रखकर अपने सामान को जब आपको चाहिए, जितना चाहिए, यू कैन गेट. फार्मर्स जब आपके सामान अब जो प्रोड्यूस करते हैं, दे डोंट हैव दिस मच ऑफ ग्रेन हाउस, तो आसपास में जो वेयर हाउस होता है वहां वो रखते हैं. द गवर्नमेंट हैज आल्सो सेंट्रल वेयर हाउस, गवर्नमेंट का भी है. देन देयर आर पीपल, प्राइवेट पीपल है जो वेयर हाउसिंग रखते हैं. वहां पर ऑन अ नॉमिनल अमाउंट दे कैन कीप देयर थिंग्स टिल इट इज सोल्ड इन द मार्केट. Advertisement removes the hindrance of information. How does a consumer come to know about what is there in the market? मार्केट में कौन सी चीज आई है, कौन सी चीज नहीं आई है, कैसे पता लगेगा? सो दैट इज डन बाय एडवर्टीजमेंट. So these are the auxiliaries to trade जो आपका टाइम टू टाइम जो बिजनेस होता है उनको हेल्प करता. बट टुडे टुडे ये जो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे जो है ना, दे हैव बिकम मोर. हम लोगों ने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे पढ़ा था. टुडे देयर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज मोर देन आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट, क्योंकि एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज द लाइफलाइन ऑफ अ कंट्री. बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, आपके लोन्स वगैरह जितने ज्यादा होते हैं, दैट हेल्प्स अस टू बूस्ट द इकोनॉमी. इंश्योरेंस टुडे इज नॉट ओनली प्रोविजन ऑफ certainty, it is also a business, capital formation. और पहले क्या होता था, वेयर हाउसिंग बहुत कम होते थे. अभी बहुत सारी कंपनीज या बिल्डिंग अप देयर वेयर हाउसिंग. इट इज नाउ बिकमिंग अ बिग बिजनेस. एंड एडवर्टाइजमेंट तो हम लोग सभी जानते हैं. ऑन द टीवी वी कम टू नो सो मेनी एडवर्टाइजमेंट्स. दे आर एडिंग. तो आज ये जो है एक कंप्लीट इनफैक्ट इंडस्ट्री बन गए हैं. And they are adding to the GDP more than primary and secondary. अब हमने पढ़ा कि बिजनेस में क्या क्या होते हैं. बिजनेस एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू इंडस्ट्री एंड ट्रेड. एंड ट्रेड, सॉरी, एंड कॉमर्स. एंड कॉमर्स जो है वो आपका, उसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. अभी हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर दो चीजें जरूरी है. एक है प्रॉफिट. प्रॉफिट आपका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लास 11, बिकॉज इफ द प्रॉफिट इज नॉट देयर, दैट एक्चुअली इज द मेजरमेंट ऑफ द रनिंग ऑफ अ बिजनेस. बिजनेस चल रहा है, नहीं चल रहा है,
उसका मेजरमेंट सिर्फ एक प्रॉफिट ही बता सकता है। इट इज द रिवॉर्ड फॉर द पेन रिस्क टेकन बाय द एंटरप्रेन्योर। जब प्रॉफिट आएगा तो वो उसको मोटिवेट करेगा, ओके मेरी कंपनी प्रॉफिट में चल रही है तो वो चलाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो हो सकता है एक टाइम के बाद वो उसे क्लोज कर दे। तो दैट माइट बी वन, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। लेकिन प्रॉफिट के साथ एक चीज और आती है और वो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। नाउ रिस्क is of course essential part of business। आप छोटा बिजनेस, एक ठेले वाले का भी नुकसान होता है। अभी फॉर एग्जांपल कल मैं मतलब क्या हैड गॉन टू द मार्केट, तो मैंने वहां पर आई वाज बाइंग द गोल्ड, आज की डेट पर द टोमेटोज। तो ही वाज टेलिंग मी कि कई मतलब कि जो टोमेटोज है वो बारिश की वजह से खराब हो जाती है, यानी कि नुकसान तो उसका भी है तो वो छोटा सा बिजनेसमैन। मैं कल एक मतलब देयर इज दिस इज अ न्यूज, यूपी के अंदर एक सब्जी वाले ने अपने टोमेटोज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंसर्स रखे, एंड दिस इज बिकॉज लूटपाट मच रही है, रिस्क इज देयर। That means natural, human, economic, other causes, there are different, and the degree of risk will depend on the size and nature। बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जिसने क्रोर्स लगाए हैं उसका नुकसान भी क्रोर्स में होगा। मशीनों वाला जो बिजनेस है दैट इज नेचर, उसका उसका जो मतलब कि रिस्क होगा दैट वुड बी मोर। एंड अ स्मॉल कंज्यूमर जिसके होंगे, जो कि आपके डे टू डे यूज होता है, उसमें जो रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है। बट if the entrepreneurs have the audacity to take the risk, then profit is their reward। When we talk about so many companies which have come up, this is because of the risk that the entrepreneurs have taken। आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कॉजेस। भाई कुछ आपके रिस्क हैं जो होते हैं प्योर, और कुछ हैं जिनको आप स्पेकुलेट कर सकते। प्योर आपका होगा या नहीं होगा, बट स्पेकुलेट कर सकते हैं। देयर माइट बी चेंज इन द टैक्स रेट्स, देयर माइट बी सम अनसर्टेनिटीज, एंड कॉजेस हमारे होते हैं नेचुरल। फर्स्ट, एनी काइंड ऑफ ट्रेजेडी naturally which is not in the hands of the people, that's natural cause। earthquake, कल का rain, cloud bursting, pandemic, all these comes under natural cause because the humans do not have the control। Second is the human cause, maybe due to the inefficiency of the person, dishonesty, चोरी मतलब कि जो लेबर्स हैं या वर्कर्स हैं उन्होंने कुछ घपला कर दिया, उसकी वजह से लॉस हुआ। एंड इन कंपनीज इट इज क्वाइट पॉसिबल। एनीथिंग इन विच देयर इज सम इनएफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, उसकी वजह से देयर वाज अ लॉस, देयर वाज सम केयरलेसनेस, देयर वाज सम नेग्लिजेंस, देयर वाज सम वर्कर का कुछ फॉल्ट था, दैट्स ह्यूमन, जिसमें आपका ह्यूमन इज इन्वॉल्व। इकोनॉमिक, इसको आप लोग जो हो यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड। एनीथिंग विच इज हैविंग द कॉज ऑफ मनी, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, इन्फ्लेशन यानी कि चीजों के दाम इन्फ्लेट हो गए, एनी न्यू इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, अचानक से गवर्नमेंट ने टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, एनीथिंग जिसका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके प्रॉफिट पर असर हुआ, इकोनॉमिक।
and other causes are like political instability, because that's not natural human या economic को कुछ तक तो हम लोग जो है anticipate कर सकते हैं, but bursting of the boiler, war, political cause, जैसे अभी यूक्रेन में हुआ, that was a that comes under the other cause. फ्रांस में अभी riots हुए, that's the other cause. So some causes which may not be predicted, they are all under the other cause. So when we are starting a business, जब हम business को start करते हैं, तो first of all we need to understand the meaning of business, how business is different from, कल को आप चाहते हो भाई, you are a chartered accountant, you are an MBA, you want to start your own enterprise, बट उससे पहले यू शुड नो कि आपको किस बिजनेस के अंदर जाना है, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, वेदर यू वांट टू डू समथिंग रिलेटेड टू टेरिशरी, कितना आपको लॉस हो सकता है, कितना आपको जो है प्रॉफिट हो सकता है, क्या क्या आपके अनसर्टेनिटीज हो सकते हैं, these all first of all you need to understand. नाउ जब आपने ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली, तो अब आपके पास आता है कि आप, एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अवर सेकेंड चैप्टर, द चॉइस ऑफ बिजनेस. अब आपको समझ आ गया है व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, रिस्क है, प्रॉफिट है. तो पहले आपको देखना पड़ेगा आप कौन से तरीके का बिजनेस करना चाहते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिशरी, ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ट्रेड के अंदर आप इंटरनल या एक्सटर्नल, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस. और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आता है कि व्हाट आर द, मतलब ऐसे आ सकता है कि अभिनव वांट्स टू ओपन हिज ओन, मतलब वो आफ्टर कंप्लीटिंग, तो कौन कौन से फैक्टर्स ही शुड कीप इन माइंड, ऐसे पेपर में आता है. सेकेंड इज साइज, कितना बड़ा रखना चाहते हो, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपिटल. आप कितना कैपिटल डालोगे, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर पढ़ा, सोल लेसर कैपिटल, 2 के साथ 3 के साथ पार्टनरशिप, थोड़ा बैलेंस, कंपनी more capital, then whether you are मतलब कि interested in sole proprietorship, are you ready for a partnership, or you want to go for a joint stock company, what kind of ownership you want to, that again will be related to the capital you are going to invest. फिर आप अपने बिजनेस को कहाँ लोकेट करना चाहते हो, and that depends on various factors, like आपका, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो यू मस्ट सी कि आपका रॉ मटेरियल्स इजीली एक्सेसिबल है, नहीं तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बढ़ जाएगा. देन व्हाट, हाउ यू आर गोइंग टू फाइनेंस, यानी कि पैसा कहाँ से अरेंज करोगे. पार्टनरशिप है तो उसके साथ आप लोन लेना चाहते हो, what will be the ratio, आपका अपना लोन का रेशियो कितना रहेगा, डेप्ट इनटू इक्विटी, which is a part of our 12th standard, which is one of the question which comes as a numerical. आपका डेप्ट कितना रहेगा, आपकी इक्विटी कितनी रहेगी. देन जहां आप अपनी बिल्डिंग को रखना चाहते हो, वहां बाकी फैसिलिटीज हैं, रोड की फैसिलिटीज है, मशीन्स की फैसिलिटीज है, उनको आप कैसे लेआउट करना चाहते हो. इफ यू आर गोइंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग, अगर आपका कंप्यूटर या सर्विस इंडस्ट्री में ऐसा कुछ है, तो उनकी कैसे, आप अपने ऑफिस को कैसे सेटअप करना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ स्टाफ, बिकॉज सिर्फ आप जो हो ना, कभी भी यू आर नॉट गोइंग टू वर्क. over the period, maybe आप start कर रहे हो with one, but over the period you require people who are committed. अभी हमने ऊपर पढ़ा था human cost. अगर हमारा स्टाफ डिसऑनेस्ट होगा तो what will happen, हमारा सामान बिगड़ेगा, हमारा लॉस होगा.
Then while you are taking these kinds of business, you need to see government किस किस में कितना टैक्स का रखती है slab. And of course, after having all the feasibility studies, feasibility मतलब economically आप कर सकते हो, technically आप कर सकते हो, आपका मतलब कि मार्केट से लॉन्च है, सब कुछ आपको मिल गया, then you can decide what kind of an enterprise and you can launch your enterprise. इनमें आपके पेपर के अंदर any 3 any 6 करके आ सकता है, and the question may be that he was a student of class 11, after मतलब कि completing his class 12 he wants to open his own मतलब कि restaurant. What are the factors that he needs to keep in mind? तो आपको कोई 6 फैक्टर या कोई तो 6 तो आप अच्छे से लर्न करना है आप लोगों को. So that is the very first chapter, that is evolution and fundamentals of business.